इस वेले आप पठानकोट के सरहदी इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਉਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਜ ਦਰਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਵਿਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੋਈ 50-60 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਨਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ ਕੋਈ 4-5 ਘਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। 250 ਕਿੱਲਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾ ਦਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡੂੰਘਾਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਵੀ ਪੁਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘੱਟੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਨਵਾਲ ਦਾ 250 ਕਿੱਲਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬਮਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 500-700 ਕਿੱਲਾ ਹੋਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਸਤਪੁਰ ਦਾ ਸਰੋਟੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी। जो हमारा बमियाल वाला एरिया है, नरोट वाला एरिया, वो थोड़ा सा फ्लड प्रोन रहता है बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने इस बार अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ आर डिप्टी कमिश्नर हमने एक डिस्ट्रिक्ट फ्लड मैनेजमेंट प्लान बनाया है, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो सारे एरियाज जो फ्लड प्रोन्स हैं, वो सारे विलेजेस हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनको हमने क्लस्टर्स बना लिए हैं। और उन जो रिवर्स के ऊपर जिस रिवर्स की वजह से जैसे उज हो गया, चक्की हो गया, उनकी वजह से जो फ्लड आता है, हमने वो पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पे पिछली बार भी जो फ्लड आया था और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग चल रही है। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आपने विजिट किया है तो स्ट्रेंथनिंग वर्क्स चल रहे हैं हमारे। जो ड्रेन्स हैं उनकी सफाई चल रही है ड्रेनेज डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको डीसी साहब ने भी हदायत दी थी और अभी हमारी लास्ट मीटिंग में भी उनको फिर से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो वो काम भी ड्रेनेज की सफाई का अच्छे से चल रहा है। हमारा जो शहर का एरिया है कॉरपोरेशन का, उसमें भी कमिश्नर कॉरपोरेशन जो कि हमारे एडीसी साहब भी हैं, उनकी तरफ से जो है प्रोएक्टिवली काम किया जा रहा है। जो ड्रेन्स हैं उनकी भी सफाई हो रही है। बाकी जो फ्लड प्रोन एरिया है उसको हमने जो ऑलमोस्ट हमारे 40 विलेजेस हैं, 40 ऑड विलेजेस, जिनको हमने क्लस्टर्स में डिवाइड किया है। हर क्लस्टर के ऊपर एक नोडल ऑफिसर क्लस्टर इंचार्ज लगाया गया है और एक टीम बनी है। जैसे मोस्टली बीडीपीओज हमारे क्लस्टर इंचार्जेस हैं, तो अगर एक बीडीपीओ है जिसके पास 8 विलेजेस का एक क्लस्टर है, तो उसके साथ उसका पंचायत सेक्रेटरी होगा, हमारा पटवारी होगा, एसएचओ होगा और बाकी की उसकी टीम होगी। इसके साथ ही जो विलेज डिफेंस कमेटीज हमने बनाई हुई हैं, जो हमारी बॉर्डर सुरक्षा में हमारी हेल्प करती हैं और हमारी बेसिकली दे आर आर आईज ऑन द ग्राउंड,
और पिछली बार भी उन्होंने फ्लड्स में हमारा बहुत साथ दिया था। हमने उनको भी रोप इन किया है। हमारे क्लस्टर हेड्स ने पिछले वीक में अपने हर एक विलेज को विजिट किया है, जिसकी फोटोज भी वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और उसमें उन्होंने एक्टिवली विलेज डिफेंस कमेटीज को भी इन्वॉल्व किया है। अब इन क्लस्टर्स का काम ये है कि दे विल बी आवर फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम। हर एक डिपार्टमेंट जो है उसको उसमें लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। हर डिपार्टमेंट ने क्या काम करना है वो हम ईयर मार्क कर चुके हैं, उनको हम ब्रीफिंग दे चुके हैं कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, इन केस ऑफ एनी फ्लड्स, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा। हमने एम्पल अमाउंट में जो सैंड बैग्स है वो भरवा के अलग अलग लोकेशंस पे रख दिए हैं, सो दैट कि अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो मोबिलाइजेशन ईजी हो। अगर हम सब कुछ हेडक्वार्टर पे रख के बैठ जाएंगे तो एट द 11th आवर यहाँ से मूवमेंट मुश्किल है। तो हमने ऑलरेडी जो फ्लड प्रोन एरियाज है वहां पे ये सारे इंतजाम जो हैं वो कर दिए हैं। इसके साथ ही डीसी साहब की तरफ से जो है वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट किट भी दी गई है। जैसे आपको याद होगा कि 2 साल पहले पिछले साल भी हमने आपदा मित्रा की जो ट्रेनिंग्स कराई थी, तो जो वॉलंटियर्स उसमें आए थे उनको भी हमने 3-4 दिन पहले जो है वो ये डिजास्टर मैनेजमेंट किट्स जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। वो किट काफ़ी अच्छी किट बनाई गई है, जिसमें बेसिकली फ्लड्स को ओवरकम करने के लिए या फ्लड्स में यूज़ करने के लिए अलग अलग चीज़ें उसमें हैं। हेलमेट्स हैं, मैकिनटॉश है, टॉर्चेज है, कटर है, फर्स्ट एड बॉक्स है, इस तरह का सारा सामान है जो एक अगर किसी तरीके का भी डिजास्टर होता है तो एक फर्स्ट हेल्प के लिए ज़रूरी है। जैसे ही अगर हमें कहीं पे पता चलता है कि फ्लड की सिचुएशन हो रही है, हमने एक ग्रुप बना रखा है अपना, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें डेली जो डिस्चार्ज होता है फ्रॉम दी डैम्स एंड इनटू द रिवर्स, उसकी अपडेशन डालता है डिपार्टमेंट, ड्रेनेज वाले, इरिगेशन डिपार्टमेंट। उससे हमें थोड़ा आइडिया रहता है कि अगर डिस्चार्ज इन स्ट्रक्चर से बढ़ता है तो पानी की संभावना रहती है जमा होने की, और अगर ऊपर से फ्लड्स की सिचुएशन होती है तो हमें थोड़ा एक गो हेड मिल जाता है कि यहाँ पे एक सिचुएशन हो सकती है। तो जो हमारे क्लस्टर हेड्स हैं वो विलेज डिफेंस कमेटीज के साथ तुरंत राब्ता कायम करेंगे, और क्योंकि विलेज डिफेंस कमेटीज जो हैं वो उसी गांव के लोग हैं, जो वहाँ के आम जो गांव वाले हैं उनके एक तरह से फैमिली मेंबर, जैसे गांव में तो सब फैमिलीज की तरह रहते हैं, तो वो उनको आगाह करेंगे, उनको बताएंगे कि इस तरह से पानी भर रहा है। अगर कहीं से हमें लगता है कि पानी ज्यादा भर सकता है तो हमने डिफरेंट ऑलमोस्ट 15 इवैक्यूएशन सेंटर्स बनाए हैं। हमारे इवैक्यूएशन सेंटर्स मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, जो थोड़ी ऊंची जगह पे होते हैं, जहाँ पे हम लोगों को इन केस ऑफ एनी फ्लड्स हम इवैक्यूएट करके वहां पे इकट्ठा कर सकते हैं। वहाँ पे मेडिकल सुविधाएं हम देंगे, खाने का प्रबंध किया जाएगा, पानी का प्रबंध किया जाएगा। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा कि जब फ्लड्स आते हैं तो जो पशु होते हैं उनके लिए जो चारा होता है वो कम पड़ जाता है। तो ये ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स को बोल दिया गया है, कंसर्न सारे डिपार्टमेंट्स को, कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें फ्लड्स में अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है, 4-5 दिन के लिए कहीं इवैक्यूएशन सेंटर बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है। इसके साथ ही हमारी विलेज डिफेंस कमेटीज ने और हमारे फील्ड स्टाफ ने ऑलरेडी गांव में जाके लोगों को इस बारे में सचेत करना शुरू कर दिया है कि रेनी सीजन आ गया है, तो वो भी हमारा साथ दें फ्लड्स को रोकने में, क्योंकि जब भी फ्लड्स आते हैं तो गांव वालों का सहयोग भी बहुत जरूरी हो जाता है। एंड हमने पिछले फ्लड्स में देखा है कि गांव वाले बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो शुरू से रहते आए हैं, उनको अपनी टोपोग्राफी भी पता है। तो जब हमारी टीम जाती है तो उनको एक एक्स्ट्रा हैंड मिलते हैं गांव वालों की तरफ से। सो ऑन बिहाफ ऑफ आवर डिप्टी कमिश्नर मैं यही सबको कहना चाहूंगी, जो हमारे फ्लड प्रोन एरिया वाले लोग हैं उनको, कि हम सबकी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए गए हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी हमारे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वी आर ऑल टुगेदर, और आने वाले दिनों में जल्द ही हम लोग एक मॉक ड्रिल भी करेंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे।